Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Genetics 1. So previously we have talked about the 2-point test cross, the linkage mechanism, and also about the 3-point test cross, how to calculate the map unit, how to calculate the we can say that how to make the genetic map. So everything what we had previously we have calculated and we have made it through, but now that was the portion of linkage 1. Now we are heading toward the next topic, that is linkage 2. So that was the basic eukaryotic chromosome mapping. So previously the chapter which we have studied, in which we have studied about the linkage, about the 2-point test cross, 3-point test cross, mapping, map unit, about the gene order. So that was the basic eukaryotic chromosome mapping, and now it is also named as linkage 1, but now that is the specialized part of it, that is the linkage 2, and it is also called special eukaryotic chromosome mapping techniques. And there are various techniques in which we analyze. By using these techniques we can also overcome those problems which we have faced in the 3-point test cross and other mechanism. So in eukaryotic species, each linear chromosome contains a long piece of DNA. We all know it. A typical chromosome contains many hundred or even a few thousand different genes. So as far as the chromosomes are concerned, there are not only hundreds of genes or thousands of genes, but mostly few thousands of genes are residing on the chromosome. So the term linkage has two related meaning which we have also studied, that either the 2 or more genes can be located on the same chromosome, which means that the कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिनको अगर हम देख रहे हैं और वो जीन्स जो हैं वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं, तो इसका मतलब है वो जीन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, और जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। और ऐसा भी हो सकता है कि जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड तो हों लेकिन वो लिंक्ड ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 2 पोल्स हैं, जो 2 साइड्स हैं, 2 एंड्स हैं क्रोमोसोम के, एक जीन एक एंड की तरफ है और दूसरे जीन दूसरे एंड की तरफ है। चूंकि वो दोनों जीन्स एक दूसरे से बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो इसीलिए उनमें वो एक क्रोमोसोम के ऊपर तो हों लेकिन वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड ना हो। लेकिन कुछ जीन्स हमारे पास ऐसा होता है कि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो इतने क्लोज एक दूसरे के साथ होते हैं कि वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। उनकी जो हमारे पास जब सेल डिवीजन होती है, मियासिस होती है, रिकम्बिनेशन होती है, तो वहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर के वक्त वो जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। तो इन दोनों कंडीशंस को हम कहते हैं लिंकेज। सो वी लर्न दैट बेसिक जेनेटिक मेथड ऑफ मेजरिंग मैप डिस्टेंस इज बेस्ड ऑन द रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जो हमने 3-point टेस्ट क्रॉस देखा है या जो 2-point टेस्ट क्रॉस जिसकी हमने बात की है, वो एक्चुअली बेस करता है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर। अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर, कि हमने जो लिंकेज में बात की थी कि 2 हमारे पास जो है पेरेंटल कम्बिनेशन आते हैं और 2 हमारे पास क्रॉस ओवर्स आते हैं। इसी तरह 2-point टेस्ट क्रॉस में भी और 3-point टेस्ट क्रॉस में भी हमारे पास पेरेंटल ग्रुप्स आते हैं, सिंगल क्रॉस ओवर के ग्रुप्स आते हैं, डबल क्रॉस ओवर्स के ग्रुप्स आते हैं। तो वो असल में रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है कि जितनी ज़्यादा रिकम्बिनेशन हुई है, कितनी फ्रीक्वेंसी है रिकम्बिनेशन की, उसी की बेस के ऊपर जो है वो हम एनालाइज करते हैं कि कितने हमारे पास जो है वो जीन जो है एक दूसरे से फासले के ऊपर है। ए जेनेटिक मैप यूनिट वी हैव डिफाइंड इट यूज्ड एज ए रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1%, कि कितने परसेंट, 1% में से हमने कितना उसको लिया था। दिस इज यूजफुल फंडामेंटल यूनिट दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड इट इज स्टिल यूज्ड इन जेनेटिक्स। So this particular method, we can say that the recombination mapping or recombination frequency or the mapping based on the recombination frequency, it is important one and it is used still in the genetic field. However, the longer recombinant frequency, the less accurate it is a measure of map distance. लेकिन जो एक इसका ड्रॉबैक है या जो एक इसका प्रॉब्लम है इसके साथ, जो हम कह सकते हैं कि ये इसकी लिमिटेशन जो है वो क्या है, कि जितना ज़्यादा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एक्सीड करती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, उतना एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास कम होती जाएगी हमारे रिजल्ट्स की। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी कह सकते हैं
कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड एक्यूरेसी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एक्यूरेसी उतनी कम होगी। तो ये एक दोनों जो है ये एक दूसरे के साथ अब जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास एक मेजर ड्रॉबैक है कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए हम जो है वो 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के जरिए, 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के जरिए जीन ऑर्डर मालूम कर सकते हैं, मैप डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है। सो टिपिकली व्हेन मेजरिंग रिकम्बिनेशन बिटवीन 3 लिंक्ड लोकाई, the sum of two internal recombinant frequencies is greater than the recombinant frequency between the outside loci। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम जो हमने 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में भी हमने फेस की थी, वो क्या थी कि जब हम मेजर कर रहे होते हैं 3 लोकाई को, 3 जीन्स को, जो 2 हमारे पास इंटरनल है या जो 2 मिडल वाले हैं, जब हम उनको जमा करते हैं तो वो ज्यादा होता है एक्चुअल मैप डिस्टेंस से। तो इसमें हमारे पास फर्क आ जाता है कि मैप डिस्टेंस एक्चुअली कौन सा वाला है। अगर हम 2 को जमा करके हम सारे का सारा मैप यूनिट लें या हम अलग-अलग से काउंट करें तो कौन सा वाला सही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट नहीं आते, देयर इज ए चांस ऑफ एरर। तो ये हमारे पास एक लिमिटेशन है। सो विद द यूज ऑफ सच डेटा व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट दैट कैन बी मेड ऑफ मैप डिस्टेंस बिटवीन द 2 आउटसाइड लोकाई y and EC इन द फॉलोइंग डायग्राम। सो वी हैव अ डायग्राम। इसमें हमारे पास 3 जीन्स हैं, जिस तरह हमने पहले भी हमने डायग्राम में हमने देखा था। अगर ब्लैक, पर्पल एंड कर्व्ड में उसमें भी हमारे पास 3 क्रोमोसोम्स, 3 जीन्स थी। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ये एलील है, एक ये हमारे पास W है और एक EC है, ये 3 है। तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करें कि हमारे पास ये जीन मैप जो है ये एक्यूरेट आए। तो या तो हम ये करें कि Y और W के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करें और फिर W और EC के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करें। तो हम इसके मैप डिस्टेंस को, Y और W के मैप डिस्टेंस को और W और EC के मैप डिस्टेंस को प्लस करके Y और EC का मैप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं इसमें हमारे पास ये एक इशू आता है, एक प्रॉब्लम आती है कि वो एक्यूरेट नहीं आते। सो द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मैप डिस्टेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सम ऑफ द डिस्टेंसेस कैलकुलेटेड फॉर शॉर्टर सब इंटरवल्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटरवल्स हैं दरमियान में Y और W के दरमियान, W और EC के दरमियान, EC अगर यहाँ पे कोई और जीन है तो उसको हम देख सकते हैं। तो शॉर्टर इंटरवल को जितना हम मैप करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट आएंगे। However, if we have no intervening marker loci available to measure recombination in shorter interval, तो अब हमारे पास ठीक है, एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम शॉर्टर इंटरवल्स का मालूम करते हैं और फिर उसको जमा करते करते जो है वो हम सारे का सारा डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास जीन्स ऐसी भी हो सकते हैं जिनके दरमियान में कोई ऐसा मार्कर भी मौजूद ना हो, कोई ऐसी एलील भी मौजूद ना हो, कोई ऐसी जीन भी मौजूद ना हो। तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, तो ये हमारे पास फिर एक और लिमिटेशन आ जाती है। सो सच सिचुएशन वुड बी कॉमनली इनकाउंटर्ड व्हेन बिगिनिंग टू मैप अ न्यू एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हम एक नए ऑर्गेनिज्म को, जितनी भी मोस्टली हमारे पास मैपिंग के या लिंकेज के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ड्रोसोफिला के ऊपर हैं या प्लांट्स में फॉर एग्जांपल पी प्लांट्स के ऊपर हैं या अरेबिडोप्सिस के ऊपर हैं। तो ये जो मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं इनके ऊपर तो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसा नया ऑर्गेनिज्म लेते हैं और उसके क्रोमोसोम को मैप करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल हमें उसकी सारी की सारे जीन्स का ऑर्डर नहीं मालूम होता, हमें उसकी म्यूटेशंस नहीं मालूम होती, वाइल्ड टाइप कौन सी है, रिसेसिव कौन सी है, म्यूटेंट्स उसमें कौन कौन से हैं, कितने हैं, एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है। सो ये सारे के सारे इश्यूज हैं जो हम इनकाउंटर करते हैं जब हम एक नए ऑर्गेनिज्म में मैपिंग कर रहे होते हैं। सो इन केसेस इन विच द जीनोम इज ह्यूज, या तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म नया है या जीनोम जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, बहुत बड़ा जीनोम है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग जो है वो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं। तो उन थाउजेंड्स ऑफ जीन को मैप करने के लिए जब हम उसको स्टार्ट लेंगे तो फिर हम कैसे स्टार्ट लेंगे, हम किस हिसाब से उसको कैसे इनिशिएट करेंगे और कैसे उसको टर्मिनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल इन द प्रीसीडिंग डायग्राम व्हाट इफ देयर वर नो नोन बी लोकस। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द previous diagram. Would we have to make to do with the map distance value obtained directly from Y and EC recombinant frequency? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्दर व्हाट अबाउट द शॉर्टर इंटरवल्स देमसेल्व्स। तो शॉर्टर इंटरवल्स हमारे पास ठीक है, एक एडवांटेज है, लेकिन उनका क्या होगा, उनमें भी हमारे पास हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लिमिटेशंस आए।
So if there were other loci between y and w and between w and ec, then we might obtain even better estimate of the y to ec distance. अभी हमने जो डायग्राम देखी थी उसमें हमारे पास 3 एलील्स थी, y, w and ec. तो y स्टार्ट में है, w दरमियान में है और ec जो है वो एंड के ऊपर है. तो अगर शार्टर इंटरवल्स की बात करते हैं, तो अगर हम ऐसा कर दें कि इसमें एक और एलील ऐड कर दें, एक और लोकाई ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल कंसीडर x, फिर पहले हम क्या करेंगे, y आ जाए, फिर w आ जाए, फिर x आ जाए, फिर ec आ जाए. तो फिर हम पहले y और w के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर w और x के दरमियान, और फिर x और ec के दरमियान. तो ये हमारे पास एक बेटर एस्टिमेट आ सकता है. So luckily there is a way of taking any recombinant frequency and performing a calculation to make it a more accurate measure of a map distance without studying shorter and shorter interval. तो ठीक है, हमारे पास एक मैकेनिज्म तो मौजूद है कि हम शॉर्टर इंटरवल्स का हम मैप डिस्टेंस मालूम करें, लेकिन ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल जब थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हमारे पास हों और हम हर एक क्रोमोसोम को मैप करने के ऊपर आ जाएं और हमें उस ऑर्गेनिज्म के जीनोम का, क्रोमोसोम्स का आइडिया भी ना हो, सो इट विल टेक ईयर्स टू मेक द करेक्ट मैप यूनिट. तो इसको अवॉइड करने के लिए दैट इज द वे, वो हमारे पास एक मेथड मौजूद है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी हमारे पास सिचुएशंस ऐसी आ जाते हैं जिसमें हम एक मेथड को जब इस्तेमाल करने पे आ जाएं, सो इट विल गेट मोर टाइम, मोर मनी, मोर वी कैन से दैट एक्सपर्टीज, और उसका आउटकम जो है वो बहुत टाइम के बाद आएगा. तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए, टाइम और मनी को रिड्यूस करने के लिए उसको क्या किया जाता है, कोई अल्टरनेटिव मेथड जो है वो ढूंढा जाता है ताकि उसको जो है वो एक नया मेथड इस्तेमाल करके उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मेजर किया जा सके. तो हमारे पास सो बिफोर वी कंसिडर द कैलकुलेशन, तो अब हमारे पास जो आगे मेथड हैं वो सारे के सारे बेसिक यूकैरियोटिक मैपिंग से आगे के हैं, मतलब उसको ओवरकम करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए. सो हियर वी हैव द प्रॉब्लम, हियर वी हैव द एग्जांपल. प्रॉब्लम के साथ हम उसको डिस्कस करते हैं. Let's think about the reason why larger RF values are less accurate measures of map distance. So we have already encountered the culprit, multiple crossover. तो अगर आपको याद हो कि जब हमारे पास जो है वो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज ज़्यादा होती जाती हैं तो एक्यूरेसी जो है वो कम होती जाती है. तो ये कैसा होता है, क्यों होता है? जब हमने एग्जांपल की थी मल्टीपल क्रॉसओवर्स की, सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर्स, उसमें हमारे पास जो है वो वी लर्न दैट डबल क्रॉसओवर्स ऑफन लीड टू ए पेरेंटल अरेंजमेंट. अगर आपको याद हो जब हम कर रहे थे कि डबल क्रॉसओवर्स हमारे पास जब आते हैं तो उन डबल क्रॉसओवर्स में एलील्स अपने आप को मोस्टली पेरेंटल में जो है वो पेरेंटल सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं. सिर्फ मिडल वाली एलील की जो हमारे पास पोजीशन है वो चेंज होती है, बाकी वैसे ही रहती है. एंड देयरफॉर रिजल्टिंग मियाटिक प्रोडक्ट्स आर नॉट काउंटेड व्हेन मेजरिंग रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी. तो हमने भी जब काउंट किया था तो स्टार्ट में हमने उसको मियाटिक प्रोडक्ट को काउंट नहीं किया था क्योंकि उसकी अरेंजमेंट बिल्कुल पेरेंटल ग्रुप्स की तरह ही थी. तो उसमें हमारे पास यही मसला आता है कि मियासिस तो उसमें हो चुकी है, लेकिन वो मियासिस इस तरह से हुई है कि मल्टीपल क्रॉसओवर्स की वजह से वो अरेंजमेंट इस तरह है कि हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, कि हमें नहीं समझ आती कि ये पेरेंटल ग्रुप है या ये रिकम्बिनेंट है. So the same is true for other types of multiple crossover. For example, if there is a triple crossover, quadruple crossover, or we can say that 5 क्रॉसओवर्स हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो क्रोमोसोम में तो पॉसिबिलिटी है क्रॉसिंग ओवर की, लेकिन उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो हमारे पास रिजल्ट आता है, मियाटिक प्रोडक्ट आता है, वो इस तरह का होना चाहिए कि हम उसको डिटेक्ट कर सकें. तो कुछ केसेस में तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और हम उसकी वैल्यूज की बेस के ऊपर हम उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं. लेकिन कभी कभी हमारे पास मसला यही आता है कि मियासिस हो चुकी है लेकिन हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो इस बेस के ऊपर हम उसकी जो मैप डिस्टेंस है वो करेक्ट नहीं बना सकते. सो इट इज इजी टू सी दैट मल्टीपल क्रॉसओवर्स ऑटोमेटिकली लीड टू एन अंडर एस्टिमेट ऑफ मैप डिस्टेंस. तो यहाँ पे हमारे पास यही बात है जो हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर है, ट्रिपल क्रॉसओवर है, क्वाड्रुपल क्रॉसओवर है, जितने ज्यादा होते जाएंगे वो मैप डिस्टेंस उतना ही ज्यादा उसकी एक्यूरेसी जो है उतनी ही कम होती जाएगी. एंड बिकॉज द मल्टीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलेटिवली मोर कॉमन ओवर लॉन्ग रीजन्स, तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, वी कैन सी व्हाई द प्रॉब्लम इज वर्स फॉर लार्जर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी. सो वी हैव समराइज्ड इट.
कि क्यों लार्जर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज की वजह से हमारे पास एक्यूरेसी कम होती है, कि जितने ज्यादा मल्टीपल क्रॉसओवर्स होते जाते हैं उसकी वजह से अरेंजमेंट इस तरह की आती हैं कि उनको डिटेक्ट करना जो है वो बड़ा ही मसला बन जाता है। तो इसलिए उसको डिटेक्ट करने के लिए वी हैव made another method, that is we can say that a method which we can be used, that is 100%, or we can say that more accurate than the previous methods. So how can we take these multiple crossovers into account when calculating the map distances? तो इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या मेथड है इसका? What we need is a mathematical function. अब हम क्या कर रहे हैं? We are using the mathematical function. So what is a mathematical function which relates recombination to a map distance? यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरह से वो जो है recombination mapping हो रही है. So here we are talking about the mathematical function. So remember previously जितना भी हमने काम किया था उसमें mathematics involved थी, लेकिन mathematics at that time was involved only for limited to dividing and multiplying, and that's it. So here we are using the multiple equations, and we can using the equations, mathematical equations, and then we are calculating it. So in other words, what we need is a mapping function. So here we are introducing the new term, that is the mapping function. So mapping function is a formula for using recombinant frequencies to calculate map distances corrected for multiple crossover products. So what is the mapping function? So remember, mapping function always is a formula which is used for recombinant frequencies and to calculate the map distances, corrected map distances. तो हम इसकी बेस के ऊपर अपने 3 point test क्रॉस के रिजल्ट को जो है वो मैच भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्या वो सही है या वो सही नहीं है. So to derive a mapping function we need a mathematical tool widely used in genetic analysis because it is useful in describing many different types of genetic processes. तो इसके लिए हम जो mathematical tool use करते हैं that is called the Poisson distribution. So what is Poisson distribution? A Poisson distribution is merely a description of the frequencies of different types of classes that arise from sampling. So basically this Poisson distribution term is related to mathematics. But that term we are applying in the genetics to quantify the actual number of crossovers. So the Poisson distribution describes the frequency of classes containing 0, 1, 2, 3, 4 and I items when the average number of items per sample is known. जब हम क्या करते हैं कि हमें एवरेज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस कंटेनिंग, हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमें नंबर मालूम है, क्लासेस जो है वो 1, 2, 3, 4 आई तक मालूम है, लाइक और उसका एवरेज जो है सैंपल का वो भी हमें मालूम है. So Poisson distribution is particularly useful when the average is small in relation to the total number of items available. तो अब हम इसको आगे जो है वो अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सो वी आर स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल. द पॉसिबल नंबर ऑफ टेडपोल्स क्या होते हैं? जो लार्वे होते हैं, जो प्यूपे या जो हमारे पास एग से निकलते हैं फ्रॉग्स में, टेडपोल्स हम उसको कहते हैं. obtained in a single dip of a net. हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नेट है, एक जाल है, हम एक पॉन्ड में वो फेंकते हैं ताकि हम जो है वो पकड़ सकें फ्रॉग्स को या फ्रॉग्स के टेडपोल्स को. So the number in a pond is quite large, but most dips yield only 1 or 2 or none. लेकिन चूंकि टेडपोल्स को हम जिस नेट से पकड़ रहे हैं वो नेट की साइज इस तरह से है, या तो हम जब उसको पॉन्ड में फेंकेंगे तो हमारे पास या तो एक टेडपोल आएगा या 2 आएंगे या 3 आएंगे या हमारे पास कोई भी नहीं आएगा. लेकिन पॉन्ड में बहुत ही ज्यादा टेडपोल्स मौजूद हैं. So number of, इसी तरह हमारे पास number of dead birds on the side of a highway is potentially very large, but in a sample mile the number is usually small. For example, यहाँ पे जो next example हमारे पास है वो ये है कि अगर हमारे पास एक हाईवे है, for example ये जो हमारे पास चश्मा रोड है या बनू रोड है, we are starting from the DI Khan and we are ending till the Paharpur or till the Chashma. So that is the very long highway. तो इसके साइड पे जितने भी बर्ड्स मरते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बर्ड्स के मरने की शरह बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन अगर हम एक सैंपल ले लें, एक माइल ले लें, फॉर एग्जांपल इन बिटवीन द रंगपुर एंड पहाड़पुर, तो ये क्या होगा कि ये हमारे पास एक सैंपल माइल है, तो उसमें हमारे पास नंबर बहुत कम आ रहे हैं.
तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सैंपल है वो एक्चुअल नहीं है, वो हकीकत के ऊपर मबनी नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास एक्चुअल नंबर बहुत ज्यादा है और हम ले बहुत कम रहे हैं। तो यही चीज हम जेनेटिक्स में अप्लाई करते हैं कि हमारे पास एक्चुअली जो क्रॉस ओवर्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जिस चीज को हम देख रहे होते हैं और जो फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं है, वो एक्चुअल नहीं है, वो हकीकत के ऊपर मबनी नहीं है। सो सच सैम्पलिंग्स आर डिस्क्राइब्ड वेल बाय द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम बाय यूजिंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास फार्मूला है Fi = E - mi डिवाइडेड बाय I। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसमें हमारे पास किस तरह क्या चीज है, सो इसकी बेस के ऊपर हम इसको डिस्कस करते हैं।